हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड हाई इन योर स्पिरिट्स। धर्म क्षेत्र पर आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज इमरजेंसी प्रोविजंस एंड सी दीज आर योर रिवीजन क्लास, राइट? सो ऑल द concepts we are discussing here that are in nutshell, concepts को बिल्कुल नटसेल में ला करके, यानी उनका जो एसेंस है उसको निचोड़ करके आपको दिया जा रहा है और इसी एसेंस को लेकर के आपको एग्जाम हॉल में जाना है। सो कीप इट इन योर माइंड। तो चलिए आज हम इमरजेंसी स्टार्ट करते हैं। सी द इमरजेंसी प्रोविजंस हैज बीन बोरोड फ्रॉम वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी दैट यू नो वेरी वेल, and the articles dealing with the emergency provisions are article 352 to 360. The most important thing that can be asked in the question exam, that what is the rationale behind incorporation of emergency provisions in the constitution, because no other democratic country in the world have emergency provisions in their constitution. So the rationale our forefather gave for the incorporation of article 352 to 360 in the constitution, ध्यान से सुनेंगे, these words are important: to safeguard the sovereignty, unity, integrity and security of the country. To safeguard the sovereignty, unity, integrity, security of the country. Secondly, democratic political system. And thirdly, to safeguard constitution. So these are the rationale given by our forefathers for the inculcation of emergency provisions in the constitution, and these keywords are very important. UPSC can play around these keywords, so आप mind में रखेंगे कि sovereignty, unity, integrity and security of the country, the democratic political system and the constitution. To safeguarding these things, emergency provisions has been inculcated in the constitution. Okay, so basically we deal in Indian constitution, we there are three types of emergency. The Constitution of India stipulates three types of emergency, and these three types of emergencies are dealt with by three different articles. Under article, for example, 352, 356 and 360. When it comes to article 352, the emergency covered in article 352 is known as national emergency. But याद रखेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे कि 352 के लिए पॉपुलरली 352 के अंदर जो इमरजेंसी लगती है उसको नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके लिए प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी वर्ड यूज किया है, याद रखेंगे आप। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर ये बोलचाल की भाषा, पॉपुलरली इन पॉपुलर लैंग्वेज it is known as national emergency, but under constitution article 352 is stated as proclamation of emergency. Article 356 is also known as president rule, and 360 financial emergency. See, under article 352 emergency can be imposed on three grounds, that is on war, external aggression or armed rebellion. These are the three grounds under which article 352 के अंदर इमरजेंसी इम्पोज की जा सकती है, दैट इज वार, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। अगर इमरजेंसी वार या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे प्रोक्लेम की जा रही है, सो दिस इज नोन एज एक्सटर्नल इमरजेंसी। और अगर इमरजेंसी आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड पे प्रोक्लेम की जा रही है तो दिस इज नोन एज इंटरनल इमरजेंसी। और याद रखेंगे, एक बात और आपको याद रखनी है कि 352 के अंदर तीन ग्राउंड्स हैं। वी हैव थ्री ग्राउंड्स अंडर 352 upon which emergency can be proclaimed, that is, first is war, second is external aggression and third is armed rebellion. But अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो थर्ड ग्राउंड जो था वो इंटरनल डिस्टर्बेंस था, नॉट आर्म्ड रिबेलियन। तो थर्ड ग्राउंड क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंस था। बट दिस फ्रेज इंटरनल डिस्टर्बेंस इज टू वेग and it has wider connotation.
एंड ओपन फॉर इजी मैनिपुलेशन। इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत वेग है, इसको किसी भी बेसिस पे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो थ्रू 44th Amendment Act 1978, this word internal disturbance has been substituted by armed rebellion. याद रखेंगे, internal disturbance ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थर्ड ग्राउंड था, बट seeing its vagueness and prone of multiple interpretations, 44th Amendment Act 1978 से इंटरनल डिस्टर्बेंस को किससे सब्सटीट्यूट कर दिया गया? आर्म्ड रिबेलियन से सब्सटीट्यूट कर दिया गया. सो करेंटली वी हैव थ्री ग्राउंड्स of proclamation of national emergency, that is war, external aggression, armed rebellion, and if an emergency is proclaimed on the ground, first two grounds, that is war or external aggression, it is known as external emergency, and if an emergency is proclaimed on the ground of armed rebellion, this is known as internal emergency. याद रखेंगे आप? ओके, सॉरी, आर्टिकल 356 को देख लेते हैं थोड़ा सा. तो आर्टिकल 356 में there is a situation of emergency in case when there is a failure of constitutional machinery. याद रखेंगे आप, machinery in a state. आर्टिकल 356 किस तरह के इमरजेंसी की बात करता है? It envisages such emergency that arises in a situation of failure of constitutional machinery in a state. इसको colloquially प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं. इसी को स्टेट इमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं. राइट, याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है 356 के केस में याद रखना कि हम तो इसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी भी 356 के केस में इमरजेंसी वर्ड यूज नहीं किया है. The word emergency has been nowhere used in the constitution when it comes to article 356. It only states failure of constitutional machinery in a state. Clear है? आर्टिकल 356 का 360 सिमिलरली इसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. आर्टिकल 360 contempts about a situation in which keywords important है, financial stability और क्रेडिट. ये दो ही सिचुएशन है. फाइनेंशियल if a situation has arisen in which financial stability or credit of the country is threatened, then there is a situation of that situation is known as financial emergency. What are the criterias? That the financial stability or credit of the country yani India is threatened, is at threat. There is a threat to the financial stability or credit of the country, and this situation is known as financial emergency, and it is proclaimed under Article 360 of the Constitution. So this is the general introduction of three types of emergencies which we are going to discuss. In today's class, more or less, we will be sticking ourselves to the Article 352. Its proclamation, what are the grounds, then parliamentary approval, then its revocation, then we will be seeing its effects on center-state relations under different heads like effect on executive relation, effect on legislative relation, effect on financial relation. Besides, we will be seeing its effect on a duration of Lok Sabha and state legislative assembly, and besides we will be seeing its effect on fundamental rights. So these are the heads on which we are going to discuss Article 352. I hope it is making sense to you. If you want, I know our videos are not reaching lot of people right now, but अगर जिनको जो भी सुन रहे हैं, and if they feel, we can, आप कमेंट में लिखिएगा, we can use more हिंदी for your convenient only. अगर आप ज़्यादा हिंदी रखना चाहते हैं
तो please do write. We'll try to keep it bilingual also. और English तो we are using mostly we are keeping in the your convenient language, क्योंकि हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि most of the people will be convenient in the English language. Okay, so now we are going to discuss national emergency, and under this we are going to discuss grounds. We have already discussed grounds, but what are the all everything related to grounds of declaration we will be dealing with national emergency. So if you read article 352, it says that president, कुछ important key points है article 350 आपको 352 आपको बताता है. It says that who, if you read questions करते रहिए, who can president can declare a national emergency. So first and foremost, who can declare national emergency? The emergency will be declared by president only and only president. When, what are the conditions? What is the conditions? That when security of India or a part of it. So at a part of it is threatened. When, what are the grounds? When security of India or a part of its part is threatened. The word threat is of wider connotation that will come. तो पहला एलिमेंट क्या है? Who is empowered to proclaim emergency? President. At what ground? When security of India या फिर इसका किस इंडिया की सिक्योरिटी या फिर इसके किसी पार्ट की सिक्योरिटी थ्रेटेंड हो. थ्रेटेंड का वाइडर कॉनोटेशन है, हम देखेंगे. किससे थ्रेटेंड हो? हमने देखा 352 में 3 तरह के थ्रेट्स की जिक्र की गई है. वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, ये हमने अभी देख लिया है, एंड आर्म्ड रिबेलियन. 3 तरह की थ्रेट्स हैं. इन 3 तरह की थ्रेट्स को 352 में कवर किया गया है. इन तीनों में से किसी भी थ्रेट से अगर इंडिया की सिक्योरिटी या फिर इसके किसी एक पार्ट की सिक्योरिटी प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि इंडिया की सिक्योरिटी थ्रेटफुल है, देन प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है या फिर ये किस तरह की पावर है, ये हम बाद में देखेंगे. पहले हम इस थ्रेट को एनालाइज करते हैं. See this, the threat considered in Article 352 is of wider connotation because it covers 2 types of threat. One, actual threat, and secondly, potential threat. The word threat covered in Article 352 covers actual threat and potential threat. Actual means whenever there is actual war, when India is actually at war with another state, or when there is actual external aggression on India, or when there is actual armed rebellion occurring in any part of India. So in that case, president can declare, it is obvious, it is happening. There is also a situation of potential threat. What is meant by potential threat? That is, there is no actual occurrence of war. There is a situation where there is no actual external aggression, or where there is no actual armed rebellion, but there is a imminent danger. Just a minute. There is a imminent danger in the eyes of whom? Imminent means it is about to happen and it is certain. It is certain and it is about to happen. Means and this imminent danger in the eyes of whom? किसकी आंखों में imminent danger होना चाहिए? In the eyes of president. So Article 352 also says that if there is an imminent danger, yani in the case of potential threat to the security of the country or any part of it, and if the president is satisfied that this danger is imminent, he can also proclaim national emergency. So basically, the threat covered under Article 352 is of 2 kinds. When there is actual threat, that is actual occurrence of war, external aggression or armed rebellion, in that case, president can proclaim national emergency. And there is a potential threat, that is
the president is satisfied that the situation is about to happen. There's a there's a certain sure short possibility that the security of India or any part of it is going to be threatened on the grounds of war or external aggression or armed rebellion. So in both cases, president can proclaim national emergency. Now, see, the proclamation of national emergency by the president is not a discretionary power. याद रखेंगे आप कि प्रेसिडेंट का पावर जो नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने का है, ये कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है. अब प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करते हैं ऑन द, याद रखेंगे, रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट. क्लियर, ये याद रखेंगे कि प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स नेशनल इमरजेंसी ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट. ये चेंज इंट्रोड्यूस किया गया है बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978. इससे पहले क्या था? इससे पहले था कि जो नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लामेशन है, प्रेसिडेंट किसके एडवाइस, मेयर एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस दे दिया और प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी का 352 के अंदर प्रोक्लामेशन कर देंगे. बट बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ये इंट्रोड्यूस किया गया कि प्रोक्लामेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इतना आसान ना हो, और इसको चेंज किया गया कि द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट. यानी रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट मीन्स कंकरेंस ऑफ द कैबिनेट. कैबिनेट की सहमति से ही, और ये सहमति कैसी होनी चाहिए, रिटन होनी चाहिए, प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं. याद रखेंगे आप. दूसरी, इसके अलावा देखिए 30, ये तो हो गई. इसके अलावा 38th अमेंडमेंट एक्ट से प्रेसिडेंट के पावर को, प्रेसिडेंट के इमरजेंसी प्रोक्लेम करने के पावर को थोड़ा सा वाइड किया गया. बेसिकली प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया कि he or she can proclaim multiple emergencies on different ground simultaneously. इसका क्या मतलब है? मतलब है कि different proclamations on different ground. इसका मतलब अगर कोई इमरजेंसी ऑलरेडी ऑपरेशन में है ऑन द ग्राउंड ऑफ वार और प्रेसिडेंट को इमिनेंट डेंजर लगता है या फिर एक्चुअल इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन हो जाता है कंट्री में, तो एक तो वार के ग्राउंड पे प्रोक्लामेशन ऑलरेडी ऑपरेशन में है, प्रेसिडेंट कैन इशू अनदर प्रोक्लामेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रिबेलियन. सिमिलरली, if an emergency is an operation on the grounds of armed rebellion in the country and there is an situation of external aggression on the country and it threatens the security of India, then president can issue subsequent proclamation declaring another national emergency on the ground of external aggression. ठीक है. So through 38th Amendment Act, the president is empowered to issue multiple proclamations, different proclamations on different grounds. अब मुझे देखने दीजिए कि क्या कुछ छूटा आपका. एक बात रह गई कि हमने डिक्लेरेशन देखा, अब सारी बातें हमने देख लिया, ग्राउंड देख लिया, सारी चीज देख ली. एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि whether proclamation of national emergency is subject to judicial review or not. क्या प्रोक्लामेशन, नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लामेशन जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट में आता है, जुडिशरी इंटरवीन कर सकती है या फिर नॉट. तो सी 30 केशवानंदा केस आता है, केशवानंदा भारती जजमेंट, एंड उसके बाद 38th अमेंडमेंट 1975 में आता है, एंड इट मेड थ्रू 38th अमेंडमेंट 1975 द proclamation of national emergency was made immune to judicial review. इसका क्या मतलब है कि 38th अमेंडमेंट के बाद
से कहा गया कि जुडिशरी जो है नेशनल इमरजेंसी के मसले में किसी भी तरह का दखल नहीं दे सकती है। बट 44th अमेंडमेंट हमें बार बार देखना होगा। 44th अमेंडमेंट से इस 38th अमेंडमेंट के प्रोसीजर जो भी चेंजेस हुए थे उसको डिलीट किया गया। दैट इज 44th अमेंडमेंट, पोस्ट 44th अमेंडमेंट। और आज भी यही है कि प्रोक्लामेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। एंड सेकेंडली, what are the grounds on which proclamation of national emergency can be challenged? तो keep in mind कि in Minerva mill case Supreme Court gave certain grounds on which proclamation of national emergency can be challenged, and the first ground is of mala fide. Secondly, that is the declaration was based wholly extraneous and irrelevant facts or is absurd और परवर्स। आपको चैलेंज करने के लिए ये प्रूफ करना होगा कि डिक्लेरेशन जो है वो पूरी तरह से होली एक्सट्रानियस फैक्ट्स पे या फिर इररिलेवेंट फैक्ट्स पे है। यानी जो थ्रेट जो थ्रेट है या फिर जो एक्चुअल थ्रेट है या फिर जो प्रोबेबल थ्रेट है वो क्या था, पूरी तरह से आपको ये साबित करना होगा कि इररिलेवेंट था। अगर पार्शियल भी वहां पे आप जो स्टेट है वो पार्शियल थ्रेट भी प्रूफ कर देती है, तो आप जो चैलेंज कर रहे हैं प्रोक्लामेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, दैट कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। याद रखेंगे तो व्हाट आर द ग्राउंड्स? दैट द डिक्लेरेशन शुड बी नलिफाइड or the declaration should be based wholly on irrelevant fact, and it should be wholly absurd and perverse. If there is little bit of a scope of this declaration should be based on relevant, अगर partially भी जो declaration है वो relevant fact पे based है तो declaration को challenge नहीं किया जा सकता है। So I hope this makes sense to you. See, word by word पढ़ाना it's not important at this juncture. At the same time, that's why मैं कह रही हूँ कि आपको बिल्कुल हर टॉपिक का एसेंस दिया जा रहा है। एंड दिस बुक इज बिफोर मी, व्हाई आई एम टीचिंग डायरेक्टली विथ इट। किताब मेरे सामने है और कोई एसेंस जो है, कोई एक डायमेंशन छूटे ना। एंड अगेन आई डोंट वांट टू multiply, waste my effort by just copying it to the PPTs and वहां से मैं करूँ। तो ये भी इंटेंशन नहीं है आपके 365 कराने मुझे पॉलिटी एंड IR के, मैपिंग है, एंसेंट मेडिवल तमिलनाडु की करानी है, तो देयर इज लॉट ऑफ थिंग नीड्स टू बी डन। ओके, उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये नटशेल में जो एसेंस दिया जा रहा है ना, इसी एसेंस को लेकर जाना और आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है, रटना नहीं है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। प्रोक्लामेशन के ग्राउंड्स तो हमने देख लिया, सारी चीजें। नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हो गई है, अब उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होना है। तो देखिए, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है, प्रोक्लेम होने के बाद इसको दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट यानी बोथ हाउसेस से, यानी लोकसभा एंड राज्यसभा से, इट मस्ट बी अप्रूव्ड। अप्रूव होना बहुत जरूरी है। और ड्यूरेशन क्या है? विद इन 1 month ऑफ द प्रोक्लामेशन। जिस डेट को प्रोक्लामेशन हुआ है नेशनल इमरजेंसी का, उस डेट से 1 महीने के अंदर इस नेशनल इमरजेंसी के प्रोक्लामेशन को बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा से अप्रूवल मिलना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये प्रोक्लामेशन सरवाइव करेगा। और याद रखिएगा कि ये जो अप्रूवल है, it should be with special majority and not with simple majority. So a special majority means what? Majority of the total membership of the house and majority of the 2/3 of members present and voting. So this proclamation of approval must be passed by special majority and that too within 1 month of the proclamation. अगर हम देखें तो इनिशियली ये जो ड्यूरेशन था 2 months था कि प्रोक्लामेशन के 2 महीने के अंदर दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए। बट थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट ये ड्यूरेशन को 2 महीने से कम करके
1 महीना कर दिया गया. नाउ the provision is कि the proclamation of emergency must be passed by both houses of parliament with a special majority within 1 month of the proclamation. ये तो अप्रूवल हो गई. अब ड्यूरेशन क्या है? देखिए, एक बार पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस में पास हो गया ये नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लामेशन, तो ये कब तक चलेगा अप्रूवल? 6 महीने तक. इट विल कंटिन्यू फॉर द 6 मंथ एंड पोस्ट 6 मंथ आप क्या करेंगे? ये जो इसको ये अप्रूवल है, इसको आप इंडिफिनिटली एक्सटेंड कर सकते हैं. बट इसके लिए क्या करना होगा? प्रोक्लामेशन का जो अप्रूवल है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल, हर 6 महीने पे जाकर के पीरियोडिक अप्रूवल लेना होगा. यानी हर 6 महीने पे पार्लियामेंट से अप्रूवल लेता रहना होगा. एंड कंटिन्यूएशन का, एक बार इमरजेंसी का प्रोक्लामेशन का अप्रूवल हो गया तो वो 6 महीने तक चलेगी. एंड हर 6 महीने के बाद उसके कंटिन्यूएशन के लिए पार्लियामेंट के पास जाकर के अप्रूवल लेना होगा. और ये इनडिफिनिट नंबर ऑफ टाइम के लिए चल सकता है. क्लियर है? सो प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी कैन लास्ट अप टू इंडिफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स. द ओनली रिक्वायरमेंट इट इज कि यहाँ पे पीरियोडिक अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट मिलता रहे. यानी हर 6 महीने बाद पार्लियामेंट का अप्रूवल मिलता रहे कंटिन्यूएशन का, और इस तरह से हर 6 महीने करके वो कंटिन्यू होती रहेगी. ये समझ में आ गया? अगेन ये पीरियोडिक अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट 44th अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया गया था अभी सेफगार्ड. एक और बात यहाँ याद रखेंगे कि हमने देखा कि ये दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए. प्रोक्लामेशन का अप्रूवल भी एंड कंटिन्यूएशन भी. अप्रूवल का रिजोल्यूशन और कंटिन्यूएशन का रिजोल्यूशन दोनों स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए. एंड दैट टू बाय both houses of, there is a lag in the pen, both houses of parliament. So अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक सिचुएशन एनविसाज करता है कि मान लीजिए कि नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लामेशन होता है और लोकसभा उसको बिना अप्रूव किए डिसॉल्व हो जाती है, तो क्या होगा? नेशनल इमरजेंसी के लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन इसका सॉल्यूशन देता है कि देखिए, मान लिया कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई है बिना अप्रूव किए हुए, लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी को मीनवाइल राज्यसभा 1 महीने में अप्रूव कर देती है इसका प्रोक्लामेशन, तो ये नेशनल इमरजेंसी सरवाइव करता रहेगा. और जैसे ही न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा लाइफ में आती है, इसको अपनी फर्स्ट सीटिंग के बाद within 30 days, there is a lag in the pen, within 30 days न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा क्या करे? इसको अप्रूव करना पड़ेगा, तभी नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू हो पाएगी. एंड सेम रूल गोज फॉर कंटिन्यूएशन ऑल्सो, कि मान लीजिए अप्रूवल हो गया है, 6 महीने का हमें टाइम भी मिल गया है, 6 महीने बाद से हमें इसे फिर से रिन्यू कराना है इसके अप्रूवल को, यानी कंटिन्यूएशन के लिए आए हैं, तब तक लोकसभा जो है डिसॉल्व हो जाती है. तो क्या सॉल्यूशन है? राज्यसभा इसको अप्रूव कर दे, राइट? और फिर लोकसभा, जब न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा आएगी तो इसकी फर्स्ट सिटिंग के 30 दिन, विद इन द 30 डेज ऑफ फर्स्ट सिटिंग, लोकसभा इसके कंटिन्यूएशन को भी अप्रूव कर दे, तो नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू होती रहेगी. एंड अगेन दिस कंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी का जो रिजोल्यूशन है किस मेजोरिटी से पास होना चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज majority of the total membership of the house and majority of the 2/3 of the members present and voting. So यहाँ पे आप याद रखेंगे कि 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए अप्रूवल. सेकेंडली, once approved it lasts for 6 month and every 6 month पार्लियामेंट का पीरियोडिक अप्रूवल लेना होगा इसके कंटिन्यूएशन के लिए. एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड टू इंडेफिनिट पीरियड. And periodic approval of the parliament for on every 6 months. It has been added by 44th amendment and that's it. और ये अगर लोकसभा डिसॉल्व है तो राज्यसभा मीनवाइल अप्रूव कर दे, एंड लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग के बाद से विद इन 30 days
लोकसभा भी इसको अप्रूव कर दे, इतना ही रिक्वायरमेंट है, इतनी सी ही कहानी है। ये जो भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन का है, ये यही एसेंस है, यही लेकर के आप जाएंगे एग्जाम में। ओके, सो हमने प्रोक्लामेशन भी देख लिया, पार्लियामेंट के अप्रूवल भी देख लिया, ड्यूरेशन में देख लिया। अब हमें देखना है कि रिवोकेशन के क्या क्या प्रोविजंस है। रिवोकेशन मतलब कि नेशनल इमरजेंसी का ऑपरेशन सीज कैसे होगा। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन, इफ यू रीड कॉन्स्टिट्यूशन, 3 तरह के प्रोविजंस बनाए गए हैं। एक तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑलरेडी थे, एंड बाकी 2 44th अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं। सो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि प्रेसिडेंट एट एनी टाइम कैन रिवोक द नेशनल इमरजेंसी by a subsequent proclamation, and this subsequent proclamation of the president for the purpose of revocation of national emergency does not require parliamentary approval. So the first way of revocation of national emergency is through subsequent proclamation of the president. And does it require parliamentary approval? No. This subsequent proclamation of president for the purpose of revoking national emergency does not require parliamentary approval. Required नहीं, आई थिंक ये थोड़ा सा ब्लर्ड हो जा रहा है। ओके, अब 44th अमेंडमेंट से 2 बातें ऐड की गई और आपको बहुत ध्यान से सुनना है। 44th अमेंडमेंट से पहली बात ऐड की गई कि अगर लोकसभा एक रिजोल्यूशन पास कर दे फॉर द पर्पस ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्रोक्लामेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, लोकसभा अगर एक रिजोल्यूशन पास कर दे फॉर द पर्पस ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, इन दैट केस नेशनल इमरजेंसी हैव टू बी रिवोक्ड। रिवोक करना ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। लोकसभा क्या है? लोकसभा रिप्रेजेंट्स विल ऑफ द पीपल। सो अगर विल लोग पीपल की विल ही कर रही है कि भाई अब नेशनल इमरजेंसी के कंटिन्यूएंस की आवश्यकता नहीं है, बट एग्जीक्यूटिव यानी प्रेसिडेंट इज स्टिल परसिस्टिंग, देन देयर इज अ वे टू द लेजिस्लेचर यानी विल ऑफ द पीपल, थ्रू विच द legislature can exert the will of the people and pass a resolution for the discontinuation of the national emergency. In that situation it has to be revoked. याद रखेंगे आप। सेकेंडली 44th अमेंडमेंट से ही एक और प्रोविजन किया गया कि अगर 1/10 मेंबर ऑफ द लोकसभा 1/10 मेंबर ऑफ द लोकसभा एक रिटन नोटिस दे, किसको? अगर हाउस सेशन में है तो स्पीकर को, और हाउस सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट को, तो विद इन 14 डेज, रिटन नोटिस देने के विद इन 14 डेज हाउस की स्पेशल सिटिंग बुलानी पड़ेगी। स्पेशल सिटिंग बुलानी पड़ेगी। पर्पस क्या होगा? पर्पस होगा कि एक रिजोल्यूशन लिया जाएगा for disapproving continuation of the proclamation, or resolution will be taken for the discontinuation of the proclamation. So basically ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कि सिर्फ एक ही रूट है कि एक बार आप पीरियोडिक अप्रूवल तो पार्लियामेंट से ले रहे हैं, लेकिन एक बार पार्लियामेंट अप्रूव कर दी, फिर पार्लियामेंट के पास यानी लेजिस्लेचर के पास कोई रूट नहीं है जिसके थ्रू वो अपना डिसअप्रूवल एक्सप्रेस कर सके। तो एक बार पार्लियामेंट से अप्रूवल ले लिया, देन सारा कुछ एग्जीक्यूटिव के विल के ऊपर है। लेकिन हम 44th अमेंडमेंट के थ्रू एक रूट देते हैं एक लेजिस्लेचर के पास, और उसके विल को एक्सप्रेस करने का एक रूट दे रहे हैं कि ओके, फर्स्टली आपके पास पीरियोडिक अप्रूवल के लिए आना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव को फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ इमरजेंसी, एंड सेकेंडली you also have the route, you also have the option to express discontent over further continuation of the national emergency, and you, the legislature, especially Lok Sabha only,
that is House of the People, you can express your will, you can exert your will and pass a resolution expressing discontent over further continuation of the national emergency. And once the Lok Sabha passes such resolution, the national emergency has to be revoked. याद रखेंगे आप. So basically हमने देखा अभी तक कि नेशनल इमरजेंसी के जब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हो गई है तो प्रोक्लेमेशन के प्रोक्लेम होने के बाद अप्रूवल लेना पड़ रहा है. थोड़ा सा जैसे ही मैं लिख रही हूँ ये ब्लर हो जा रहा है. वी विल सी इट अ पोस्ट क्लास. नेशनल इमरजेंसी के प्रोक्लामेशन के बाद अप्रूवल के लिए जा रहे हैं और डिसकंटिन्यूएशन व्हाट हैपेंड डिसकंटिन्यूएशन के लिए भी ये छोड़ रहा है. एक मिनट शायद ओके. सो नेशनल इमरजेंसी के प्रोक्लामेशन के लिए भी हमें अप्रूवल चाहिए और नेशनल इमरजेंसी के डिसकंटिन्यूएशन के लिए भी अप्रूवल का प्रोविजन है. अब क्लास कैसे कंटिन्यू होगा देखते हैं. सो बेसिकली दोनों में डिफरेंस है. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू द पेन. चलो इससे ही करेंगे. सो जब हम नेशनल इमरजेंसी के प्रोक्लामेशन के लिए जाते हैं और उसके अप्रूवल के लिए बात करते हैं तो ये अप्रूवल दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से होना चाहिए. बोथ हाउसेस. आई डोंट नो व्हाई इट इज गेटिंग ब्लर्ड आफ्टर राइटिंग. बोथ हाउसेस से होना चाहिए. यस. यानी जो प्रोक्लामेशन का अप्रूवल है ये दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों से होना चाहिए. बट जब डिसअप्रूवल के डिसकंटिन्यूएशन के अप्रूवल की बात करते हैं तो डिसकंटिन्यूएशन के लिए जो रिजोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास पावर है कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा जो है वो एक रिजोल्यूशन पास करके डिसकंटिन्यूएशन को इफेक्ट दे सकती है. तो ये आप याद रखेंगे. ठीक है. Let's see how we will continue this class. Okay, I'll try to discuss as much as possible, not to write. So now we will be discussing what are the effects of national emergency. So when it comes to effects of national emergency, it is read under different pillars. For example, what is the effect on center-state relations, and that too we will see on different headings. When we deal with the center-state relations, we will see what is the effect on the executive part of center-state relation, effect on legislative part of center-state relation, and effect on the finances, financial aspect. Okay, so under center-state relations, we will be dealing with these three pillars. Then we will see the effect on the life of the Lok Sabha and State Assembly, and then we will see effect on fundamental right. So now come firstly see effect of center-state, effect of national emergency on center-state relations, precisely executive relations. See, बहुत ध्यान से सुनेंगे, याद रखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी के जब नेशनल इमरजेंसी इफेक्ट में होती है स्टेट गवर्नमेंट, और जब स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ यानी स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर्स. ठीक है. सो स्टेट गवर्नमेंट इज कम्स अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. जब नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में होती है तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंप्लीट कंट्रोल में चली जाती है. याद रखेंगे आप. पहली बात. दूसरी बात कि स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड नहीं होती है. It is not suspended, though state government is under complete control of the central government, but it is not suspended. Then it is functional. ये state government यानी council of ministers headed by chief minister is functioning. This institution is functioning, but it is under complete control of central government. So basically, state government becomes subservient to the
सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड ये बातें याद रख लेंगे। दूसरी बात कि नॉर्मल टाइम में हमने देखा था कि आर्टिकल 365 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वास्ट पावर है कि नॉर्मल टाइम में भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को। बट व्हेन इट कम्स टू आर्टिकल 352 यानी नेशनल इमरजेंसी के दौरान ध्यान से सुनेंगे, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, इन दिस पीरियड the executive power of center extend to give any direction, कोई भी डायरेक्शन ऑन एनी मैटर टू द स्टेट। वास्ट पावर है कि कोई भी डायरेक्शन दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी मैटर पे, एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज टू फॉल इन लाइन एंड obey this direction. So basically, when national emergency is an operation, state government is functional, state government is not suspended, but it is functioning under complete control of the central government, and the executive power of the central government extends to giving any direction on any matter to the central government, as to the state government, and the states have to obey this direction. So basically, state government reduces to merely an instrument of the सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखेंगे आप, पूछा जा सकता है आपसे। अब हम आते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस पे। सी, याद रखेंगे, पहली बात याद रखेंगे कि स्टेट लेजिस्लेचर ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी व्हेन आर्टिकल 352 is in operation, state legislature remains functional। आपसे पूछा जा सकता है कि क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, तो जैसे स्टेट गवर्नमेंट फंक्शनल रहती है, सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर रिमेन्स फंक्शनल, इट इज नॉट सस्पेंडेड। याद रखेंगे आप। सो प्रिसाइजली इफेक्ट क्या हुआ, लेजिस्लेचर तो फंक्शनल है बट इट इज फंक्शनिंग अंडर, its function is subject to overriding power of parliament. What does it mean? The functioning, when a 352 is in operation, the functioning of the state legislature is subject to overriding power of the parliament. हमने पढ़ा था कि there are 5 exceptional circumstances जहाँ पे पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ इनैक्ट कर सकती है, और उसमें से एक था प्रोक्लामेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। सो व्हेन देयर इज अ proclamation of national emergency, parliament becomes authorized to enact any law on any subject in the state list. But because state legislature remains functional, that state legislature can also enact law on the same subject as enacted by the parliament. But अगर कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन होता है स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के लॉ में, तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? Parliamentary law will prevail, and that is why it says कि state legislature is functioning but subject to overriding power of the parliament। क्योंकि state legislature और parliament एक ही सब्जेक्ट x, मान लीजिए x एंट्री है स्टेट लिस्ट में, इस x सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट भी लॉ बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बनाएगी, लेकिन इन दोनों लॉज में कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो किसका लॉ ओवरराइड करेगा? पार्लियामेंट का लॉ स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ पे ओवरराइड कर जाएगा। याद रखेंगे आप। दूसरी बात कि अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट नॉट इन सेशन, हमने देखा नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है 352 जब ऑपरेशन में, लेकिन जब पार्लियामेंट सेशन में ही नहीं और 352 ऑपरेशन है, इन दैट केस प्रेसिडेंट is authorized to proclaim to issue ordinance on subject of state list। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और 352 ऑपरेशन में है, तो उस केस में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं ऑन द मैटर्स ऑफ स्टेट लिस्ट। याद रख लिया आपने। लास्ट चीज जो आपको याद रखनी है कि ये जो नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ इनैक्ट कर रही है, ये जिस मोमेंट पे नेशनल इमरजेंसी रिवोक होती है
और या फिर जिस मोमेंट पे नेशनल इमरजेंसी का ऑपरेशन सीज होता है उसके मैक्सिमम 6 मंथ ही इस लॉ का लाइफ है. आफ्टर 6 मंथ द लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट सीज टू हैव एनी इफेक्ट. जिस मोमेंट पे नेशनल इमरजेंसी रिवोक होती है या जिस मोमेंट पे नेशनल इमरजेंसी ऑपरेट सीज होती है ऑपरेट होने से, एट मैक्स उसके 6 महीने तक ही पार्लियामेंट्री लॉ और द स्टेट लिस्ट विल प्रिवेल. 6 महीने के बाद जैसे ही 6 महीने पूरते हैं उस लॉ का इफेक्ट, वो लॉ इनइफेक्टिव हो जाएगा. तो इतनी बातें आपको याद रखनी है व्हेन इट कम्स टू लेजिस्लेटिव रिलेशंस. अगेन हमने देखा था मैंने जब हम फाइनेंशियल रिलेशंस रिवाइज कर रहे थे कि सेम लाइन पे यहाँ पर डिस्कशन है कि जब 352 ऑपरेशन में है तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है रेवेन्यू का सेंट्रल और स्टेट के बीच में, वो मॉडिफाई करने का पावर प्रेसिडेंट के पास है. एंड मॉडिफाई करने का पावर है कि जो सम है डिस्ट्रीब्यूशन का वो आइदर प्रेसिडेंट रिड्यूस कर सकता है या फिर इंटायरली कैंसल कर सकता है. और ये जो मॉडिफिकेशन है कब तक इफेक्ट में रहेगा, जिस ईयर में नेशनल इमरजेंसी यानी 352 ऑपरेट सीज हुआ है या फिर रिवोक हुआ है उस पूरे फाइनेंशियल ईयर में ये मॉडिफिकेशन अप्लाई करेगा. याद रखेंगे आप. अगेन दिस इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर एंड दिस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू मॉडिफाई द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर स्टेट, दिस ऑर्डर हैज टू बी लेड बिफोर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. यानी पार्लियामेंट से प्रेसिडेंट का जो ये ऑर्डर है उसको क्या करना होगा, पास कराना होगा. याद रखेंगे आप. तो ये हमारा हमने देखा जब नेशनल इमरजेंसी 352 ऑपरेशन में है तो सेंटर स्टेट रिलेशंस में प्रिसाइजली एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंसेस में क्या क्या इफेक्ट होता है. याद रखेंगे एग्जीक्यूटिव यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, ये सस्पेंड नहीं होते, दे आर फंक्शनिंग बट दे आर अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द central government, and central government can give any directions to the executive government. As far as legislature is concerned, again state legislature is not suspended, it is functional, but it is subject to the overriding power of the parliament. And when 352 is in operation, parliament state list के किसी भी entry पे law बना सकती है, and that law will survive until the 6 months after national emergency has ceased to operate. उस दौरान अगर पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंसेस ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट लिस्ट. फिनेंसेस की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी यानी 352 ऑपरेशन में है जब, तो प्रेसिडेंट का पास पावर है कि वो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर स्टेट्स है उसको मॉडिफाई कर सकता है. मॉडिफाई मीन्स इधर जो सम है उसको रिड्यूस कर सकता है या फिर चेंज कर सकता है. एंड दिस पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट्री अप्रूवल. अगेन आपको इसी तरह से प्रिपेयर करना है अपने सब्जेक्ट को कि जब आप जब बैठे तो आपके सामने एक टॉपिक का एसेंस माइंड में आना चाहिए कि इस पूरे टॉपिक का एसेंस क्या है. इसलिए इस और जो पॉलिटी यहाँ पे धर्म क्षेत्र पे हम आपको रिवाइज करा रहे हैं, इसी एसेंस को लेकर के जाना है. और कल से हम आपके PYQs के क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे प्रिसाइजली फॉर पॉलिटी. चलिए अब हम देख लेते हैं कि नेशनल इमरजेंसी यानी 352 का इफेक्ट पार्लियामेंट यानी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव के असेंबली के ड्यूरेशन पे इसका क्या इफेक्ट होगा. देखिए जब 352 का प्रोक्लामेशन ऑपरेशन में है तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लाइफ को बढ़ाया जा सकता है. द लाइफ ऑफ लोकसभा और लाइफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बी एक्सटेंडेड, यानी बढ़ाया जा सकता है बट ये मैंडेटरी नहीं है. इट इज नॉट मैंडेटरी. सो जरूरी नहीं है कि हर बार नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में हो तो
लोकसभा या फिर स्टेट असेंबली की लाइफ को बढ़ाया ही जाए. इफ इट इज रिक्वायर्ड इट मे बी एक्सटेंडेड. तो एक तो हमने देख लिया कि लाइफ बढ़ाई जा सकती है, बट कौन बढ़ाएगा? हु इज ऑथोराइज्ड टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ Lok Sabha and State Legislative Assembly? तो remember, only Parliament and only Parliament is authorized to extend the life of both Lok Sabha and State Legislative Assembly, that by enacting a law. पार्लियामेंट लॉ बना करके लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लाइफ को एक्सटेंड कर सकती है, इसके लाइफ को जो नॉर्मल टाइम है, नॉर्मल टर्म है लोकसभा और स्टेट असेंबली का 5 इयर्स, उससे बियॉन्ड इसके ड्यूरेशन को एक्सटेंड कर सकती है. अब किस पीरियड के लिए होगा? तो याद रखेंगे 1 year at a time, 1 year at a time for any length of time. यानी एक बार में 1 साल के लिए ड्यूरेशन बढ़ा दिया, फिर से पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे दिया, फिर से ड्यूरेशन बढ़ गया 1 साल के लिए. और ये जो लूप है 1 year at a time for any length of time, इट विल बी कीप, ये हमेशा कंटिन्यू होता रहेगा इंडिफिनिट पीरियड के लिए until the national emergency, until 6 months after national emergency ceases to operate. मान लीजिए ड्यूरेशन बढ़ा हुआ है, ये कोई भी लूप हो सकता है, और यहाँ पे आकर के नेशनल इमरजेंसी रिवोक हो जाता है या फिर नेशनल इमरजेंसी का ऑपरेशन जो है वो सीज हो जाता है, तो इस डेट के बाद से मैक्सिमम 6 महीने के अंदर लोकसभा डिसॉल्व होनी चाहिए, स्टेट असेंबली डिसॉल्व होनी चाहिए और फ्रेश इलेक्शंस होनी चाहिए. ये दोनों के लिए जो यहाँ पे बताया गया, स्टेट असेंबली के लिए भी लागू होती है, लोकसभा के लिए लागू होता है. और दोनों केसेस में कौन अथॉरिटी है जो इनके नॉर्मल ड्यूरेशन को एक्सटेंड करेगी? पार्लियामेंट करेगी. एंड इज दिस प्रोविजन इज मैंडेटरी? क्या जब भी नेशनल इमरजेंसी 352 ऑपरेशन में हो, लोकसभा की ड्यूरेशन बढ़नी ही चाहिए या फिर स्टेट असेंबली की लाइफ बढ़नी ही चाहिए? नहीं, दिस इज नॉट अ मैंडेटरी प्रोविजन. दिस इज अ provision which comes with a word may, यानी whenever situation arises then it can be done. क्या पास्ट में ऐसा हुआ है? याद रखेंगे, आपसे ये हिस्ट्री मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस के हिस्ट्री से रिलेट करके पूछा जा सकता है कि अभी तक एक बार ऐसा हुआ है जहां पे लोकसभा के टर्म को एक्सटेंड किया गया था ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी. एंड 5th लोकसभा की बात है, 5th लोकसभा, उसका टर्म था 1971 to 75, बट इसको 2 बार एक्सटेंड किया गया 2 times by 1 year at a time. सो जो 5th लोकसभा है उसका नॉर्मल टर्म से बढ़ाकर उसके टर्म को, उस समय नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में थी, अगर आप याद करें तो 1971 में पाकिस्तान पे से वार पे थे हम, तो वो प्रोक्लामेशन था. 75 में इंटरनल इमरजेंसी लगी, तो 2 इमरजेंसीज ऑपरेशन में थी और यहाँ पे 2 बार लोकसभा का नॉर्मल टर्म बढ़ा है. ये याद रखेंगे, पूछा जा सकता है आपसे. अब तक एक बार ऐसा हुआ है कि इमरजेंसी के सिचुएशन में लोकसभा के ड्यूरेशन को एक्सटेंड किया गया हो. कौन करेगा? या पार्लियामेंट लॉ बना के करेगी. क्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी ड्यूरेशन को बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है. जैसा पार्लियामेंट के लिए प्रोसीजर है वैसा ही, जैसा लोकसभा के लिए प्रोसीजर है वैसा ही पार्लियामेंट के लिए भी प्रोसीजर है. अगेन आई होप कि नटसेल में जो भी आपको बताया जा रहा है, आप इसको बिल्कुल ऐसे ही नटसेल में आपके माइंड में ये छपना चाहिए कि ऐसा, ये जो कहानी आपको बताई जा रही है ना, ऐसे ही माइंड में आपको कहानी लेकर जाना है. और अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, पॉज कीजिए, वीडियो को दोबारा सुनिए, जो कंटेंट वहां पे आपके उस टॉपिक में लिखा हो उसको पढ़िए, आपको समझ में आएगा. अगर इस अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह से यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है, इस अंडरस्टैंडिंग से अगर आप जाते हैं एग्जाम देने, और सिर्फ यही नहीं, हम नेशनल इमरजेंसी कवर कर लेंगे, देन हम तब हम प्रेसिडेंट गवर्नर, पहले हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, फिर गवर्नर के प्रोविजंस को कंपेयर करेंगे, पार्लियामेंट पढ़ेंगे, फिर स्टेट लेजिस्लेचर पे आएंगे और वहाँ पे पार्लियामेंट से कंपेयर करेंगे. आई नो दिस एक्सरसाइज इज टेडियस, ये एक्सरसाइज मेरे से भी बहुत एफर्ट मांगता है, बट
एंड उसके बाद फिर हम ये हो जाएगा, फिर हम इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जैसे कि पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटीज, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये सारे चैप्टर्स कवर करेंगे और फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, ये सब कवर करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से आपको एक स्टोरी के फॉर्म में हर टॉपिक का नट्सल मिलेगा। सो आप पढ़ते रहिए, आप पढ़ते रहिए। मान लीजिए कि प्रेसिडेंट का क्लास मोस्ट लाइकली परसों आएगा, परसों प्रेसिडेंट लेते हैं, अगर आपने उससे पहले 4 बार पढ़ लिया है, तो जब इस तरह से प्रेसिडेंट को नटशेल में आपके साथ सामने प्रेजेंट किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है नहीं है, तो आपको और क्लियर होगा। तो आप पढ़ते रहिए और जैसे ही यहाँ क्लासेस आपके पास जाते हैं तो इनको बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है, पढ़ना है, जहाँ जरूरत लगे आपको नोट्स बनानी है। See, we have reached to the most important section of this class, that is effect of proclamation of national emergency on fundamental rights. And when we see the effect of proclamation of national emergency on fundamental rights, there are 2 articles that deal with these effects. Precisely, article 358 and article 359. These 2 articles deals with the effect of national emergency on fundamental rights. Article 358 and 359 आप याद रखेंगे। जब आर्टिकल 350 की 8 की बात आती है, सो सी व्हेन आर्टिकल 358 के अंदर आर्टिकल 19 के जो, आई होप इट इज क्लियरली विजिबल टू यू, आर्टिकल 358 के अंदर आर्टिकल 19 में जो आपको 6 फंडामेंटल राइट्स गारंटीड है, उनके सस्पेंशन की बात की गई है। When there is when Article 352 is in operation, the rights provided under Article 19 gets suspended by Article 358, and इनके अलावा जो भी other rights हैं which are mentioned in presidential order, वर्ड याद रखेंगे आप, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में बाकी राइट्स हैं जिनके इन्फोर्समेंट को सस्पेंड किया जा रहा है, वो 359 से गवर्न होता है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। सो बेसिकली आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 के राइट्स के इन्फोर्समेंट से डील करता है और आर्टिकल 359 उन सारे राइट्स के इन्फोर्समेंट से को सस्पेंड करता है, सस्पेंशन से डील करता है जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में मेंशन है, एक्सेप्ट 20 एंड 21। यानी नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी जब नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में हो, द इन्फोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 21 and 20 and 21 is not suspended, their enforcement remains alive, and ये एक्सेप्शन 44th अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लियर है ये? तो अब हम आर्टिकल 358 के अंदर आर्टिकल 19 के राइट्स के सस्पेंशन की बात करेंगे। देखिए, जब जैसे ही नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लामेशन आता है, जिस मोमेंट पे आता है, जिस क्षण पे आता है, चाहे रात के 12 बजे आए, शाम के 5 बजे आए, सुबह के 5 बजे, किसी भी जिस मोमेंट पे नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लामेशन आता है, उसी मोमेंट पे ऑटोमेटिक सस्पेंशन होता है। याद रखेंगे आप, ऑटोमेटिक सस्पेंशन होता है किसका? आर्टिकल 19 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं उनके इन्फोर्समेंट का, देयर इज अ ऑटोमेटिक सस्पेंशन। और किस मोमेंट पे होता है? जिस मोमेंट पे आर्टिकल 352 का प्रोक्लामेशन होता है, और इसके लिए कोई सेपरेट ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ही आर्टिकल 352 इफेक्ट में आया, आर्टिकल 358 के वर्च्यू की वजह से आर्टिकल 19 विल बी सस्पेंडेड। और ये सस्पेंशन जो है ये किस ड्यूरेशन के लिए रहेगा? फॉर द इंटायर ड्यूरेशन इन विच फॉर विच इमरजेंसी वाज इन ऑपरेशन। जिस ड्यूरेशन के लिए इमरजेंसी ऑपरेशन में है, उस पूरे ड्यूरेशन के लिए ये आर्टिकल 358 के अंदर आर्टिकल 19 का सस्पेंशन रहेगा। एंड द मोमेंट ऑन एट विच इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट और इमरजेंसी इज रिवोक्ड, उस मोमेंट पे ऑटोमेटिक रिवाइवल है, ऑटोमेटिक रिवाइवल हो जाता है आर्टिकल 19 के अंडर जो फंडामेंटल राइट्स है उनका। क्लियर है ये? आर्टिकल 358 के अंदर
ये प्रोविजन है कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में आएगी, आर्टिकल 19 का ऑटोमेटिक सस्पेंशन होगा। और ये सस्पेंशन किस पीरियड के लिए होगा? फॉर द इंटायर पीरियड, इंटायर ड्यूरेशन जब नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में हो। एंड जैसे ही नेशनल इमरजेंसी सीज करती है ऑपरेट के, जिस मोमेंट पे नेशनल इमरजेंसी रिवोक होती है, आर्टिकल 19 का ऑटोमेटिक रिवाइवल होता है। याद रखेंगे। और एक बात याद रखेंगे कि ये जो आर्टिकल 358 के अंदर आर्टिकल 19 का सस्पेंशन है, इसका इफेक्ट ये एप्लीकेबल है फॉर द इंटायर ऑफ इंडिया। भले नेशनल इमरजेंसी, हमने पढ़ा कि नेशनल इमरजेंसी पूरे इंडिया में अप्लाई कर सकता है, या फिर किसी पार्ट ऑफ इंडिया में नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन हो सकता है, प्रोक्लामेशन हो सकता है। लेकिन चाहे नेशनल इमरजेंसी किसी पार्ट ऑफ इंडिया में ऑपरेट कर रही हो, बट आर्टिकल 19 का सस्पेंशन पूरे इंडिया में होगा। याद रखेंगे आप। मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नेशनल इमरजेंसी का ऑपरेशन है, सो यू कैनॉट सिट इन दिल्ली एंड you will give a statements against affecting the sovereignty and unity of the country. क्लियर है ये? सो नेशनल इमरजेंसी का ऑपरेशन कहीं पूरे ड्यूरेशन, नेशनल इमरजेंसी का ऑपरेशन भले ही लिमिटेड हो सकता है टेरिटरी के किसी पार्ट में, बट आर्टिकल 19 का सस्पेंशन इंटायर इंडिया के लिए होगा। और ये ड्यूरेशन जो है वो कोटर्मिनस है नेशनल इमरजेंसी के ड्यूरेशन के। इसके अलावा कुछ छूट रहा है क्या? लेट मी सी। हाँ, अब इसके अलावा एक बात आपको याद रखनी है कि देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक सस्पेंशन ऑफ 6 फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 19, ये बहुत वास्ट पावर है। तो इसके लिए कुछ प्रोटेक्शन, रिमेडियल मेजर लिए गए कि इनका मिसयूज ना हो सके। सो 44th अमेंडमेंट एक्ट से एक प्रोविजन किया गया कि आर्टिकल 19 का सस्पेंशन तभी होगा जब इमरजेंसी एक्सटर्नल हो। यानी आर्टिकल 19, the rights under article 19, their enforcement will only be suspended when emergency is declared on the external ground, that is war or external aggression। तो वार और एक्सटर्नल एग्रेशन के सिचुएशन में ही आर्टिकल 19 का सस्पेंशन है बाय वर्चुअल ऑफ आर्टिकल 358। अगर इमरजेंसी आर्म्ड रिबेलियन, देखिए पूछा जा सकता है आपसे, अगर इमरजेंसी आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पे यानी इंटरनल इमरजेंसी है, क्या उस केस में आर्टिकल 19 का सस्पेंशन हो सकता है? नो। याद रखेंगे आप, आर्टिकल 19 cannot be suspended or when emergency is proclaimed on the grounds of armed rebellion। इंटरनल इमरजेंसी में आर्टिकल 19 का सस्पेंशन नहीं होता है, इसका सस्पेंशन सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी में होता है। तो ये हमने जो भी पढ़ा ये सारा कुछ कि ऑटोमेटिक सस्पेंशन, ऑटोमेटिक रिवाइवल, कोई सेपरेट ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है, जो सस्पेंशन का ड्यूरेशन है वो कोटर्मिनस है इमरजेंसी के पीरियड के, और इसका इफेक्ट जो है सस्पेंशन पूरे इंडिया पे लागू होगा। ये सब किस केस में है? एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में है, यानी जब इमरजेंसी वार या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे प्रोक्लेम किया गया हो तभी। आई होप कि कुछ छूट नहीं रहा हो। बाकी देखेंगे हम अभी 358 और 359 में कंपेयर करेंगे। अब देखिए 359, बहुत क्लियर हो जाइए कि आर्टिकल 359 में दो आर्टिकल्स को छोड़ देना है, 20 and 21। they are always alive, their enforcement is always alive। इसके अलावा आर्टिकल 359 में कौन से फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होंगे? means which fundamental rights are to be suspended? Basically their enforcement is suspended, okay? For what period? For what period? क्या
जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है वो को टर्मिनस होगा टू द लेंथ ऑफ द इमरजेंसी, या फिर कुछ सर्टेन पीरियड के लिए होगा। कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो जिनके इन्फोर्समेंट को सस्पेंड किया जाना है, इनका जो एप्लीकेशन है, जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है 359 के अंदर, उनका एप्लीकेशन इंटायर ऑफ इंडिया होगा और एनी पार्ट ऑफ इट। ये सब कहाँ कैसे डिटरमाइन होता है? ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से डिटरमाइन होता है। बस इतना आप याद रखेंगे कि आर्टिकल 359 का ऑपरेशन जो है वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से डिटरमाइन होता है। मतलब कि प्रेसिडेंट जब प्रोक्लेम करते हैं नेशनल इमरजेंसी को, तो उसके साथ साथ वो एक ऑर्डर निकालते हैं और उसमें बताते हैं कि हाँ जी देखिए, आर्टिकल 359 के तहत ये फंडामेंटल राइट्स हैं जिनके इन्फोर्समेंट को हम सस्पेंड कर रहे हैं। 2021 को प्रेसिडेंट कैन नॉट टच थ्रू बाय वर्च्यू ऑफ 44th अमेंडमेंट। ठीक है, अब इसमें वो जो भी राइट्स है वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में वो मेंशन कर सकते हैं, चाहे कोई एक राइट हो या 4 राइट हो, दैट प्रेसिडेंट विल डिटरमाइन। सो प्रेसिडेंट विल मेंशन कि व्हाट आर द राइट्स हुज एनफोर्समेंट इज गोइंग टू बी सस्पेंडेड। सेकेंडली, इन राइट के इन्फोर्समेंट का पीरियड क्या होगा, तो वो लिख बताएंगे कि हाँ जी अब देखिए इमरजेंसी तो कब तक रहेगी पता नहीं, हो सकता है अगले 6 महीने तक ये जो राइट्स हैं वो सस्पेंडेड रहेंगे। या फिर वो ये भी बता सकते हैं कि नहीं साहब, ये जो जब तक इमरजेंसी ऑपरेशन में रहेंगी तब तक ये जो राइट्स हैं ये सस्पेंडेड रहेंगे। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। थर्डली, वो ये भी बताएंगे कि देखिए जी नेशनल इमरजेंसी तो इंटायर कंट्री में ऑपरेशन में है, या फिर नेशनल इमरजेंसी सर्टेन पार्ट ऑफ द कंट्री में है, और ये जो राइट्स मैं मेंशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये भी इंडिया के इंटायर कंट्री में, इंटायर इंडिया में ऑपरेट इफेक्टिव होगा, या फिर कुछ पार्ट ऑफ इंडिया में इफेक्टिव होगा। सो पूरा ऑपरेशन ऑफ 359 एंड सस्पेंशन ऑफ द अदर फंडामेंटल राइट्स इज गाइडेड बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर में जो जो बातें बताएंगे उन फंडामेंटल राइट्स को के इन्फोर्समेंट को सस्पेंड किया जाएगा। साथ ही साथ पीरियड भी प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर में बताते हैं। साथ ही साथ ये सस्पेंशन किस पार्ट में कंट्री के लागू होगी, क्या पूरे पार्ट में लागू हो रही है या फिर सर्टेन पार्ट में लागू हो रही है, ये भी बताएंगे। साथ ही साथ ये राइट्स कब, इन राइट्स का इन्फोर्समेंट कब रिवाइव होगा, रिवाइवल ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ दिस राइट्स, ये भी कहाँ से पता चलेगा, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से पता चलेगा। तो 359 में जो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 359, इसमें याद रखेंगे कि एवरीथिंग इज गाइडेड बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर एंड कुछ भी फिक्स नहीं होता। अगर कहीं कुछ ऐसा लगे ना, आपको क्वेश्चन पूछा जाए और लगे कि रिजिड टोन बता रहा है कि इतने दिन के अंदर फिक्स हो जाना चाहिए, इतने दिन के अंदर हो जाना चाहिए, और 359 की बात है, तो आपको वहां पे घुमा रही है यूपीएससी या कोई एग्जामिनर, 359 में एवरीथिंग इज गाइडेड बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, याद रखेंगे। एंड अगेन इन्फोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 20 एंड 21 रिमेन्स अलाइव, ये 359, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट से ये प्रोटेक्शन लगाया गया था, अदरवाइज ये बहुत वास्ट राइट है। सो 20 एंड 21 का इन्फोर्समेंट हमेशा अलाइव रहता है, आप याद रखेंगे। इतना ही नटसेल में, ये जो पूरा आपको इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ दे रहा है, इसका नटसेल यही है, यही आपको अपने साथ लेकर के जाना है कि 359 में क्या होगा। सब कुछ प्रेसिडेंटियल ऑर्डर विल डिटरमाइन, कौन से राइट्स सस्पेंड होंगे, एक्चुअली उनका राइट सस्पेंड होना मतलब उनका इन्फोर्समेंट सस्पेंड होना, यानी आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते। उसके बाद ड्यूरेशन क्या होगा, पीरियड क्या होगा, ऑपरेशन किस पार्ट में होगा, होल ऑफ द कंट्री में होगा या पार्ट ऑफ द कंट्री में होगा, रिवाइवल कब होगा, सब कुछ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में से गाइड होता है। क्लियर है आपको? देखिए यही नटसेल, यही एसेंस आपको लेकर के जाना है जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे। तो चलिए अब फटाफट हम 358 और 359 के बीच में डिफरेंस है उसको समराइज कर लेते हैं। तो हमने देखा कि 358 में 358 किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 359, 358 is related to the exclusively for the article 19, and 359 is related to those rights who are is related to enforcement of those rights which are mentioned in
प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। तो 359 का सारा कुछ कहाँ से देखने को मिलता है? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। एंड बेसिकली इन राइट्स का इन्फोर्समेंट सस्पेंड होता है। एंड 358 से आर्टिकल 358 डील्स एक्सक्लूसिवली विथ राइट्स प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 19 अंडर। एक तो ये हो गया। दूसरा, अंडर आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 के अंदर जो राइट्स हैं उनका ऑटोमेटिक सस्पेंशन एंड ऑटोमेटिक रिवाइवल है, हमने पढ़ा है। ऑटोमेटिक सस्पेंशन एंड ऑटोमेटिक रिवाइवल है, यानी जैसे ही इमरजेंसी 352 जिस मोमेंट पे इफेक्ट में आया, आर्टिकल 19 के अंदर जो राइट्स है सस्पेंड हो गए। जैसे ही 352 सीज हुआ, आर्टिकल 19 के अंदर जो राइट्स है वो रिवाइव हो गए। इन दोनों एक्शंस, इन दोनों के लिए, सस्पेंशन और रिवाइवल के लिए कोई ऑर्डर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन 359 के अंदर कौन से वही राइट्स उन्हीं राइट्स का सस्पेंशन होगा जो कि मेंशन्ड है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में। तो इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स आर सस्पेंडेड, दैट इज मेंशन्ड इन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। और इनका रिवाइवल कोटर्मिनस नहीं होता है। कोटर्मिनस मीन्स कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म हो इनका रिवाइवल हो जाए, नहीं, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में ही बताया जाएगा। अगेन थर्ड केस हमने देखा कि आर्टिकल 358 के अंदर आर्टिकल 19 का सस्पेंशन, ऑटोमेटिक सस्पेंशन एंड रिवाइवल, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में ऑपरेटिव है। यानी सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 अंडर आर्टिकल 352 ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में हो सकता है। एक्सटर्नल इमरजेंसी मीन्स इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन। लेकिन आर्टिकल 359 के केस में देखें तो आर्टिकल 359 दोनों सिचुएशंस में, एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों सिचुएशंस में इफेक्टिव है। ठीक है। अगेन अगर ड्यूरेशन की बात करें तो आर्टिकल 358 के अंदर जो ड्यूरेशन जिसके लिए आर्टिकल 19 का सस्पेंशन है, ये इंटायर ड्यूरेशन है। हमने देखा है कोटर्मिनस है लेंथ, जिस मोमेंट से इमरजेंसी लगी और जिस मोमेंट पे इमरजेंसी खत्म हुई उस पूरे पीरियड के लिए आर्टिकल 19 का सस्पेंशन है। यहाँ पे जो ड्यूरेशन है ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में स्पेसिफाई है, ये लेस भी हो सकता है या फिर कोटर्मिनस भी हो सकता है, प्रेसिडेंट्स बताएंगे। अगेन फिफ्थ वन, आर्टिकल 358 इंटायर कंट्री के लिए ऑपरेशन में है। चाहे एक्सटर्नल इमरजेंसी किसी पार्ट ऑफ कंट्री में के लिए प्रोक्लेम किया गया हो, लेकिन आर्टिकल 19 का सस्पेंशन इंटायर कंट्री के लिए होता है। लेकिन आर्टिकल 359 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट हम सस्पेंड कर रहे हैं वो इधर इंटायर कंट्री के लिए अप्लीकेबल है या पार्ट ऑफ के लिए है, पार्ट ऑफ इट के लिए है। अगेन आर्टिकल 19 का हमने देख लिया कंप्लीट सस्पेंशन है, वही बातें घुमा फिरा के लिखी गई हैं। कंप्लीट सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। यहाँ पे इन्फोर्समेंट, यहाँ पे आर्टिकल 20 एंड 21 को आप टच नहीं कर सकते, तो आर्टिकल 21 कैन नॉट बी टच्ड। बस इतना ही है, आपको ये आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। और ये जो समरी आपको दिया गया है ना कंपैरिजन का, आई थिंक दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे इन विच दिस कैन बी समराइज्ड। होपफुली आपको याद रहे। बिल्कुल इसको ना इस तरह से माइंड में आपको पिक्चराइज करना है और तब जाना है। वी हैव रीच्ड टू द लास्ट ऑफ आवर क्लास, जहाँ पे हम देखेंगे कि अब तक डिक्लेरेशंस कितनी बार कब कब किए गए हैं नेशनल इमरजेंसी के। तो देखिए आर्टिकल 352 को देखें तो अब तक 3 बार प्रोक्लेम किया गया नेशनल इमरजेंसी, 1962, 71, 75। देखिए 1962 में चाइनीज एग्रेशन हुआ था तब के नेफा और अब के अरुणाचल प्रदेश पे। तब अक्टूबर 1962 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की थी और ये ऑपरेशन में था ही तभी 1962 में पाकिस्तान से, वी वर एट वार अगेंस्ट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान वार में फिर हमें सेपरेट
पाकिस्तान वार में सेपरेट प्रोक्लामेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी. So this is the first proclamation. Second, in 1971 war against Pakistan, when Pakistan attacked us, Pakistan war, then second proclamation of national emergency was made, and this proclamation was in operation still in 1971. 1971 second proclamation was made precisely in December, and this proclamation was in operation still in June 1975. The third proclamation of emergency was made on the ground of internal disturbance. Clear है? And these two proclamations cumulatively they were revoked in 1977. So अब तक 3 प्रोक्लामेशन हुए हैं, याद रखेंगे आप. इसके अलावा आप शाह कमीशन के बारे में जानेंगे. शाह कमीशन 1977 इलेक्शंस इमरजेंसी के बाद हटी, इलेक्शंस हुए, तब की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वो हारी लोकसभा इलेक्शन में, और जनता पार्टी गवर्नमेंट आती है पावर में. तो जनता पार्टी गवर्नमेंट ने शाह कमीशन अपॉइंट किया. याद रखेंगे शाह कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस क्या थे? To inquire into the circumstances that warranted the declaration of an emergency. 1975 में, जो जून 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम किया गया था. तो शाह कमीशन को ये टास्क, ये उस टर्म ऑफ रेफरेंस था शाह कमीशन का, कि इंक्वायर कीजिए कि ऐसे क्या सिचुएशंस थे that led to declaration of the national emergency, और क्या रियली में ऐसे सिचुएशन थे जिनको नेशनल इंटरनल डिस्टर्बेंस में कंस्ट्रू कर सकते हैं. एंड इन्हीं सब के बाद इन 1978 दिस जनता पार्टी गवर्नमेंट ब्रॉट 44th अमेंडमेंट, और बहुत सारे उन्होंने प्रिकॉशनरी लिमिटेशंस लगाए ओवर द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव. उसमें से ये भी था कि जो वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया आर्म्ड रिबेलियन से. अगेन 358 के ऑपरेशन में बताया गया कि 358 के अंदर जो सस्पेंशन है 19 का, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी केस में होगा. 359 में बोला गया कि 20 और 21 नहीं सस्पेंड किया जा सकता है. पार्लियामेंट्री अप्रूवल का रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल, बहुत सारे रूट्स, बहुत सारे पावर्स दिए गए. एग्जीक्यूटिव ये presidential proclamation is subject to the concurrence of the cabinet, and concurrence meant written concurrence. Presidential proclamation is subject to not merely advice of the prime minister. प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से काम नहीं चलेगा, कैबिनेट की सहमति होनी चाहिए. और इस कैबिनेट की सहमति कैसे दिखेगी? तो वी शुड हैव रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट टू प्रोक्लेम प्रेसिडेंट रूल. तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रिकॉशंस, बहुत सारे रिमेडीज लिए गए जनता पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा 1978 में थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट. तो दिस इज इट. In the next class we will be discussing president rule and financial emergency simultaneously. Till then, keep focusing and studying and get by heart your subject. This exam is not about knowing 500 subjects, and this exam is not about running after 200 tests. This exam wants you to know this exam by heart, and it means that get by heart the PYQs, क्योंकि इस एग्जाम को समझने का रास्ता सिर्फ वहीं से होकर गुजरता है. And once you know the PYQs by heart, एक तो there is a chances कि एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाए. Secondly, once you know your exam, then nothing can stops you. और आप कितने भी टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, सी आई एम नॉट एंटी टेस्ट सीरीज, इट्स जस्ट दैट मुझे लगता है कि मुझे अगर टाइम को रेशन करना पड़े एंड मैं आपको मिनिमम बर्डन में मैक्सिमम आउटपुट निकलवाना चाहूँ, तो मैं कहूँगा कि PYQs करिए, अपने सब्जेक्ट को गेट बाय हार्ट करिए और एग्जाम को गेट बाय हार्ट करिए. एग्जाम को गेट बाय हार्ट कर लेंगे ना, सब्जेक्ट अपने आप गेट बाय हार्ट हो जाएगा. सो
कीप योर सब्जेक्ट वेरी डू मतलब गेट कीप योर सब्जेक्ट वेरी क्लोज टू योर हार्ट। चाहे आप इसी तरह से जब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो नट सेल में पढ़िए कि एग्जैक्टली नट सेल में मुझे कितना लेकर के जाना है एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि इतना ही लेकर जाना है और इतना तो लेकर जाना ही है। वो अप्रोच जब आ जाएगा देन यू विल स्विम। ओके, थैंक यू वेरी मच।